Namaskar, good afternoon. I am Professor Rajiv Gowda, Chairman of the AICC Research Department. I am joined by Dolly Sharma, who was our candidate from Ghaziabad in the last Lok Sabha. We are also spokespersons. Today, we want to bring a very, very important point to your attention. This issue, well, let me start in a different way. Today, the people of India are watching and they're wondering who is going to score a century first. Is it going to be the petrol price or is it going to be the rupee dollar rate? Petrol price is at the striker's end. I'm saying striker because the Modi government continuously in the last few days has been striking a blow on the common person of India, continuously, multiple times, increasing the rate of petrol by practically 5 rupees in the course of just 1 week. Now, these actions of the Modi government demand a very strong response from the people of India. There are 3 main issues that I want to lay out in front of you. The very first issue is the issue of oil price loot. When Modi Sarkar came to power in 2014, May 26th, what was the price of crude oil? And since then, in the last 12 years, have the people of India benefited in any way from the low crude oil prices that the Modi Sarkar benefited from? Sorry, that has not been the philosophy of the Modi Sarkar or the practice. Right from day one, they were blessed. Under Dr. Manmohan Singh, during the UPA years, the price of a barrel of crude oil was more than $140, usually above $100 a barrel. And the UPA put in a huge amount of effort to shield the people of India from the adverse impacts on prices by providing subsidies. Now, when Modi Sarkar came, the price of crude oil had dropped dramatically. But I will ask every one of you who is watching this, did you see a change in the price of petrol at the petrol bunk? No, absolutely not. Why? Because continuously Modi Sarkar kept increasing excise duty, surcharge, other kinds of taxes to make sure that they were able to draw a lot of excessive revenue. When the times were good, you did not pass on the benefit to the people of India. If you had, the growth rate of the Indian economy would have been much higher. We would have seen lower fertilizer prices, lower food prices, and people would have been able to, enjoy a much higher consumption basket. Instead, you took that money, and because you could not balance your budget other ways, you used this funding, just like you're using funding from the RBI and other companies, the dividends, to balance your finances. So during the good times, if you did not pass on the benefit to the people, why are you burdening the people of India at a time like this when we cannot afford to pay that extra amount? It is the duty of the government. We demand that the government swallow the impact of this price hike and not put this burden on the people of India. The oil marketing companies, they may be losing 1,000 crores nowadays, but that is nothing compared to the windfall tax profits that they made in all those years when the prices of crude oil were much lower. The government itself charged the oil marketing companies a windfall tax when the Russian crude oil basket was much lower. So we are clear, the oil companies have done wonderfully. They have made tremendous profits, windfall profits, according to the government of India itself. And what have you done? You have taken huge dividends for the government from these oil companies and not passed on the benefit to the people of India.
That is the issue number one, oil price loot. The second is all that talk about Atmanirbharta. You kept telling us that we are diversifying our sources of oil. We're going to produce more. We're going to become Atmanirbhar. The reality is the exact opposite. We have become more and more dependent on imported crude oil, on imported LPG, on imported natural gas. Each and every dependency worsened, and now we are facing the reality. We are paying the price for it. And now at this time, you are basically saying, we cannot help it. You cut down, do austerity measures. And when you say austerity measures, your party, Modi ji, is making a mockery of austerity measures. The Rajasthan Deputy Chief Minister will go by train and all her cars will reach her at the other end. What austerity is that? Do people take public transport? I take public transport. I can show you my metro card regularly to go to my constituency in Bengaluru. And this is not a drama, but that is what you and your ministers and leaders have converted this to. Please don't do this. Figure out a way to improve our Atmanirbharta. Domestic crude oil production has come down. You, when you were Chief Minister of Gujarat, announced one huge find for the Gujarat State Petroleum Corporation. You said that it had discovered the biggest gas reserve in the Krishna Godavari basin. And then nothing was there. It was all gas, literally, and nothing was there. And then you forced the GSPC to be taken over by ONGC for 20,000 crores. That is actually a mega scam. Okay. Now, the other impact of the lack of Atmanirbharta is on fertilizers. The cost of fertilizers goes up, and who pays that price? The farmers of India. The Kisans of India are paying the price for your inability to diversify and improve domestic production. The third issue is dhokebaz, deception. What has the Prime Minister been telling us? What did the Petroleum Minister tell us a few days ago? He said, we have adequate supplies, there is nothing to worry about. If there are adequate supplies, then why is the price being increased? If there are adequate supplies, what are we concerned about? And instead, the Prime Minister also, prior to the state elections, you did not see one word of the impending crisis. You did not see an increase in the prices of petroleum and other products. But the moment the election finished, essentially you found that the government is increasing the prices. Before the election, one rosy picture to the people. Immediately after the election, once the voting is done, dhokebaz, striking at the people and at their pocketbook, at their wallets. Why did the Prime Minister not inform the citizens of India about the true reality before the elections? Because this situation, the West Asia crisis, all of this was very much going on before the election results came, before the voting took place. And when you think about how other countries have dealt with this issue, they are making sure that they are bearing the costs. They're not putting so much of a burden on their citizens. But our government does not care. You've done the voting, that is enough. You've elected Modi Sarkar and its party allies in different states, their job is done. Now is the turn to pay the price for voting for the BJP, and you will pay the price with a higher price of petroleum, higher price of fertilizers, and all this will translate into a higher price for the food you eat. You're already seeing a transporter strike in Delhi. You're already seeing Mehengai. Mehengai man, Modi, is ensuring that you will be able to eat much less. You will find that every restaurant that you want to go to have hiked their prices because the price of the gas that they use has gone up. All this is something that the government should have been taking care of. They are passing on the burden to the citizens. This is something that we are not going to stand for. We demand that the government eats up this price hike
because during the good times, they made extra normal profits, supernormal profits. I have 3 questions for the Modi Sarkar. Why did you not pass on the benefits of the oil price fall from 2014 onwards to Indian consumers? You let the government firms and even the private sector firms in this sector corner huge profits. And now you have a moral and economic obligation to control the inflation rather than to contribute to it by hiking prices. Why are you doing this? Then, why did we not diversify our supplies? You kept saying that we are improving our local production, including your tall claims of gas in the Krishna Godavari basin. Unfortunately, what you have shown us is not Atmanirbharta. You have shown us a lack of spine. You have shown us that India's sovereignty, you have compromised that, and you dance to the tune of President Trump. He says, you can't take anything from Iran. We stop doing anything, taking any oil from Iran. When he says, you cannot, we will let you take some oil from Russia, you say thank you, and then you petition him for permission to take some more. What happened to our sovereignty as a nation? What happened to your ability to talk to your friend and tell him to mind his own business and that India will do its own thing? And why, the third question, have you been continuously deceiving the public of India, the people of India, by telling them that things are rosy, but in reality, the moment they have voted, you are stabbing them in the back by increasing prices? Why are you, what else are you doing to take care of the inflationary impacts that we're going to see and the real impact of price hike, the slowing down of the economy? These are all your fault, Prime Minister Modi. Do something about it and fix the problem now. Dolly Sharma will conduct the press conference in Hindi. सभी साथियों को नमस्कार। आज इस देश में जिस तरीके से लगातार रोज जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं तो एक धमाका मोदी सरकार करती है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए। ये दूर की बात हो गई है जब सरकार जनता को राहत दिया करती थी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। मेरे साथी गौड़ा जी ने बताया आपको कि किस तरीके से आज पूरे देश में मोदी सरकार ने एक होड़ लगा दी है कि ये 100 रुपया कितना पतला होगा। डॉलर पहले 100 पार करेगा या पेट्रोल डीजल के दाम पहले सेंचुरी लगाएंगे। आज ये 100 रुपया अगर आप सुबह लेकर बैठो तो आप दूध, ब्रेड का पैकेट और सुबह का नाश्ता, अगर मैं कुछ और कहूं तो टमाटर या खीरा, आप 100 रुपए के पैकेट में नाश्ता पूरा नहीं कर सकते। ये 100 रुपया आज इतना पतला हो गया है। रुपया तब पतला नहीं था, लेकिन आज ये पतला इतना हो गया है कि सबको दिख रहा है। एक और बात बहुत अहम, लगातार जनता के लिए आपने राहत के लिए जनता के लिए क्या किया? क्या जब कच्चे तेल के दाम घटे हुए थे, क्या हिंदुस्तान की जनता को आपने रेट घटा कर दिया? तब वो मुनाफा जो आपने कमाया वो तेल कंपनियों ने कमाया, तेल कंपनियों से आपने डिविडेंड के रूप में सारा का सारा छीन लिया। जनता को क्या राहत दी? जनता ने वही बढ़ते दामों पर सब चीजें खरीदी, पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा, रसोई गैस खरीदा, हर चीज उसी बढ़ते हुए दाम पर खरीदी। आज जब पूरे विश्व में इस तरीके से नेपाल जैसा देश पेट्रोल और डीजल सस्ता कर रहा है, मोदी जी रोज सुबह पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर, रसोई गैस और कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाकर धमाके पर धमाके करते हैं। अभी उन्होंने बताया किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 3 बार दाम बढ़े हैं।
आप बार बार इस तरीके के दाम बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन इंसान की मेहनत की कीमत नहीं बढ़ रही है। इंसान जो दिन रात कर कर पैसा कमाता है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। मोदी जी की सरकार में इन्होंने कहा था अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन है जहां 3 दिन में लगातार इस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है? इशू ये है कि भारत के लोग आज सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? कच्चा तेल सस्ता, मनमोहन सिंह जी ने $140 प्रति बैरल जब कच्चे तेल की कीमत होती थी तो सब्सिडी दी जनता को, ताकि जनता की जेब पर मार ना पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज आपको लूटने का काम किया जा रहा है, जैसे लगातार आपको पहले लूटा गया। आपने आत्मनिर्भर की बात की कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बना दिया। हर प्रदेश से लेके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय बन गए। महंगाई बंगाल के चुनाव में नहीं थी, लेकिन जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, आपने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज के दाम बढ़ा दिए। दूध के दाम बढ़े 2 रुपया, आप सबको पता है। आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आज स्ट्राइक पे चल रहे हैं ट्रक वाले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज आपने एक ड्रामा बना दिया है कि आपने जनता को यह कहा कि घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। कितनी जनता वर्क फ्रॉम होम कर सकती है? देश की कितना % है जो वर्क फ्रॉम होम करता है? वो लेबर जो आज माइग्रेंट लेबर, जिसको गैस के सिलेंडर 4-4 हजार में मिल रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं पर भी जहां लेबर का काम करती है, कंस्ट्रक्शन के काम करती है, वो घर चला सकती है? जिसकी दिन की कमाई 800 रुपए नहीं है, वो किस तरीके से आज 4,000, 5,000, 6,000 का सिलेंडर खरीद सकती है? आज उन्होंने बैग पैक किया और वो गांव की तरफ निकल लिए। अगर आप सच्चाई की बात करें और सच देखें, आज बड़ी बड़ी कंपनीज में लेबर नहीं है, लेकिन मोदी जी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। पहले मोदी जी आए और उन्होंने कहा 2 गाड़ी का काफिला दिखाया, एक दिन पहले रोड शो किया, 100 गाड़ी से ज्यादा उनके काफिले में, अगले दिन 2 गाड़ियां दिखाई। ऐसे ही उनके एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बाइक पे चल दिए पीछे काफिले के साथ, और 2 दिन बाद वही मंत्री लगातार इतने लंबे काफिले से चल रहे हैं। तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट आप कर रहे हैं? ये आप क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? एक दिन रेल में जाएंगे और बाकी दिन काफिले से जाएंगे। जनता सड़क पर है और मोदी जी के मंत्री मस्त हैं। आज जिस तरीके से वो कहते हैं सोना मत खरीदिए, वो कहते हैं एक टाइम रोटी खाइए, आज ऐसा लग रहा है मोदी जी कह रहे हैं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जब जनता पूछ रही है कि पेट्रोल का दाम सस्ता कैसे होगा, रसोई गैस सस्ती कैसे होगी, सिलेंडर कमर्शियल सस्ता कैसे होगा, खाना सस्ता कैसे मिलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नीट पेपर लीक, जो 22 लाख बच्चों की दिक्कत नहीं है, वो 22 लाख परिवारों की दिक्कत है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज जनता जब राहत ढूंढती है, इनके मंत्रियों से सवाल करती है, तो मोदी जी ने कह दिया ना, बचपन में हमने देखा था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्योंकि ना मोदी जी बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी, ना मोदी जी के मंत्री बताएंगे कि राहत कैसे मिलेगी। जनता आज सड़क पर ये खुद ही ढूंढ रही है कि हमें राहत कैसे मिलेगी। वो एक दौर था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी ने जब विश्व में महंगाई का संकट चल रहा था, तो मनरेगा जैसी चीज मोदी जी लाए, और मनरेगा को घर घर 100 दिन का रोजगार की गारंटी जो मोदी जी ने दी, वो जो मनमोहन सिंह जी ने दी, घर घर तक वो फायदा पहुंचाया, लोगों के घर में वो पैसा पहुंचा, वो मनमोहन सिंह जी ने किया था, जिसे मोदी जी ने आज क्या किया, ठेकेदारी पे लगा दिया। और देश उस समय मनरेगा के कारण, सब्सिडीज के कारण
मनमोहन सिंह जी की नीतियों के कारण उस आर्थिक संकट को झेल गया और हिंदुस्तान की जीडीपी पूरे विश्व में अरबी घोड़े की तरह दौड़ती रही। हमने देखा उस वक्त के यूएस के राष्ट्रपति किस तरीके से मनमोहन सिंह जी से सलाह ले रहे थे कि कैसे आपने हिंदुस्तान में यह करिश्मा कर दिया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ा। आज हम देखते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति इस देश को आदेश देते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, कि आप, जैसा गौड़ा साहब ने कहा, ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। आप कहां से तेल खरीदेंगे? हमारे घर में 2 रोटी है, लेकिन हम अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन्हें हम 2 रोटी नहीं खिला रहे हैं, लेकिन हम बांग्लादेश को रोटी दे रहे हैं। जितना तेल आपने बाहर से मंगाया उसको रिफाइन करके आपने बांग्लादेश को कितना तेल भेजा, और आप हिंदुस्तान के बच्चों से, हिंदुस्तान की जनता से क्या कह रहे हैं कि तेल नहीं है, शेयर्ड चलिए या वर्क फ्रॉम होम करिए। अगर इतना संकट देश में है और देश की जनता भुगत रही है, रोज प्राइस राइज झेल रही है, तो आप इस संकट के समय जब आपके घर में कमी है तो आप बांग्लादेश हजारों करोड़ का तेल कैसे भेज पा रहे हैं? कैसे भेज पा रहे हैं? देश की जनता को भूखा मार रहे हैं और बाहर तेल भेज रहे हैं। तेल के दाम घटा नहीं रहे हैं। ये क्या है? बाहर से खरीदो और बाहर बेचो, हिंदुस्तान की जनता जाए भाड़ में। मैंने कहा ना, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कि करना क्या है, बताना क्या है, हल क्या है। इसका इम्पैक्ट आज जिस तरीके से गौड़ा जी ने बताया कि इसका इम्पैक्ट देश की जनता पे किस तरीके से पड़ रहा है और क्या धोखा आपने जनता को दिया है। लगातार जब तेल के दाम बढ़ रहे थे तो यूपीए की सरकार ने आपको राहत दी, लेकिन आज जब मोदी जी ने कहा मेरी किस्मत है कि तेल, आज कच्चे तेल के दाम घट गए, लेकिन मोदी जी आपकी किस्मत तो थी, लेकिन जनता की किस्मत नहीं बदली। हिंदुस्तान की जनता को आपकी किस्मत का फायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को आपने क्या दिया? धोखा। आपने अपने कोष भरे, आपने अपना पीआर किया, इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन जनता के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं किया। जनता उस धोखे को लगातार झेलती रही। आप बार बार आप जनता को कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो 4000 का सिलेंडर मुमकिन है, मोदी है तो आज बच्चों की आत्महत्या मुमकिन है, मोदी है तो देश को धोखा मुमकिन है। मुमकिन है ये धोखा जो आप दे रहे हैं, इसका हम, आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है और विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के सवाल सरकार से पूछना। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकतंत्र में, चाहे आप पत्रकार हो चाहे विपक्ष हो, हमारी जिम्मेदारी है जनता के सवालों को उठाना। और आज हम अगर जनता के सवालों को नहीं उठाते, इस महंगाई के दौर में जहां बच्चे पेपर लीक झेल रहे हैं, जहां महंगाई एक परिवार झेल रहा है, घर के बजट बिगड़ गए हैं। आज मैं एक महिला हूं, मुझे पता है बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, दूध के दाम, घर किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या क्या आफत, क्या क्या संकट एक मिडिल क्लास परिवार झेल रहा है। आप लाखों करोड़ों का कर्जा अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ करते हैं, लेकिन जनता की सब्सिडी भी छीन लेते हैं, जनता की राहत भी छीन लेते हैं। जनता को क्या मिलता है? सोना मत खरीदिए। अरे वो गरीब व्यक्ति जिसके पास अपनी बहन बेटी की शादी में देने के लिए उसको आज कान और नाक का नहीं है, आज अपने बच्चों के लिए वो छोटी सी चीज उसकी शादी में अपनी बच्ची को देने के लिए नहीं खरीद सकते। आप उस दौर में कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। सोना कौन खरीद सकता है? मध्यम वर्ग का व्यक्ति। आज 1.5 लाख के पार सोना है। कौन मध्यम वर्ग का व्यक्ति सोना खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। आपने कहा था मंगलसूत्र चुराएंगे, आपने तो पूरा का पूरा घर का बजट चुरा लिया, घर का पैसा निकाल लिया।
मोदी जी राहत दीजिए, देश को इस आर्थिक संकट से निकालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष को बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। 12 साल से सत्ता में मोदी जी, 12 साल से ज्यादा हो गए, आज सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी लीजिए। रेल मंत्री रेल पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये क्या करते? आज महंगाई की बात पर ये बात नहीं करेंगे, तो किस बात के लिए आप मंत्री हैं? किस बात के लिए आप प्रधानमंत्री हैं? किस बात के लिए आपने शिक्षा मंत्री बिठाया? आपने किस बात के लिए रेल मंत्री बिठाया? पूरे दिन आपका प्रोपोगंडा चलाने के लिए, पूरे दिन इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, या पूरे दिन चुनाव करने के लिए? ये देश कब चलाएंगे? इस देश की जनता की बात कब करेंगे? महंगाई से राहत कब देंगे? आप जनता को ये कब बताएंगे कि हां, मोदी जी सिर्फ पीआर, इवेंट या विदेश यात्राओं के लिए नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान की जनता को राहत देने के लिए। आप देखिए, ये हालात है, ये सच्चाई है आज इस देश की, जो इस पैम्फलेट पे मैं आपको दिखा रही हूं। आज दूध 56 रुपए से 58 रुपए, 3% से ज्यादा बढ़ गया है। आटा 32 से 36, 12.50% बढ़ गया है। चावल 12.50% बढ़ गया है। तुअर दाल 120 से 138, 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सब्जियां 10 से 25% तक महंगी हो गई हैं। आज खाने का तेल, जो मोदी जी ने कहा खाने का तेल कम इस्तेमाल करिए, मोदी जी कैसे इस्तेमाल करेगा कोई? कैसे करेगा कोई इस्तेमाल? आज 12% से तेल बढ़ गया है, 150 से 168 रुपए पर पहुंच गया है। आज अदरक, धनिया, टमाटर लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, ये 100 रुपए में आप आज नाश्ता नहीं खरीद सकते, एक टाइम का अपने घर का। आप खुद देखिए, ये आज का हिंदुस्तान का सत्य है। लेकिन क्या हो रहा है? पीआर क्या हो रहा है? अच्छे दिन क्या हो रहा है? आपको दुनिया की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी न जाने क्या कर रही है, 6ठे स्थान पर हम आ गए। आप ये बात करते हैं उस देश में ये हुआ, उस देश में ये हुआ, उस देश में ये हुआ, तो आज नेपाल जैसे देश ने 2 रुपए घटा दिए। कितने और सारे देशों ने पैसे घटाए हैं पेट्रोल और डीजल के, आप क्यों नहीं घटा पा रहे? आप क्यों नहीं घटा पा रहे? जो पैसा आपने तब कमाया हजारों करोड़ों में, वो पैसा आज आप देश की जनता को राहत देने के लिए क्यों नहीं लगा पा रहे? रोजमर्रा की चीजें महंगी, घर का बजट बिगड़ा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर सामान की कीमत बढ़ी। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर सामान की कीमत बढ़ती है। आज ट्रांसपोर्ट, जैसा सर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर है, अभी आप देखिए टैक्सी वाले स्ट्राइक पर है, ऑटो वाले स्ट्राइक पर है, वो लोग परेशान हैं। आज बजट जो घर का है वो घट गया है, लेकिन कर्ज बढ़ गया है। भविष्य असुरक्षित है। जब एक बच्चा आत्महत्या करता है, राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने, एक नीट के जो पेपर लीक होने के कारण एक गरीब बच्चे के परिवार ने उनसे बात की, राहुल गांधी जी ने उस परिवार से बात की। पता चला वो बच्चा 3 साल से उस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और 3 साल के बाद जब उसे लगा मेरा नंबर आएगा, तो पेपर लीक, और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। गरीब परिवार है। राहुल जी ने जब उनसे बात की, पता चला टीन की छत है, 11 लाख का कर्ज उस परिवार पर है, 11 लाख का कर्ज। राहुल जी ने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या मदद कर सकता हूं? तो उसके पिता ने कहा कि 3 साल में 11 लाख का कर्ज हो गया है, खाने को पैसे नहीं है। और मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन, ये अच्छे दिन हैं इस देश के, इस देश की आम जनता के, इस देश की महिलाओं के। आपने महिलाओं को चूल्हों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। कमर्शियल गैस का दाम आपने 1000 रुपए रॉकेट की तरह उड़ा दिया है ऊपर। हर चीज ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन क्या ऊपर नहीं जा रहा है?
क्या ऊपर नहीं जा रहा है? जनता की मेहनत, जनता की मेहनत वहीं की वहीं है। गरीब आदमी मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है? हर रोज हर चीज का दाम बढ़ क्या रहा है? आत्महत्याएं, बच्चों की, किसानों की, कर्ज ना चुका पाने के कारण एक व्यापारी की, ये हो रहा है इस देश में। ये आज इस देश की असलियत है जो हमने आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। So the government says that they were able to hold the prices steady for 76 days, and this is only a rupees 4.74 price hike after the 76 days of war. The government's agenda was deception. There were elections in various states, and they did not want the reality of how the government actually behaves. There was no need for the government to actually increase these prices at all. It has made enough profits over the last many years. This is the central key, point we are making. It has made enough profits that it could easily have swallowed these extra costs and protected the consumers and the common people of India. Instead, as soon as the elections were over, they have gone out there and attacked the people by increasing the prices. This is not a good thing to do in any case. If they are able to hold it for whatever number of days, do it for some more time. Because what this is going to trigger, it is going to trigger food price inflation. It is going to trigger impacts on farmers because of higher fertilizer prices. It is going to slow down the economy. Already you have seen that enough international agencies are saying, well, we thought the economy would grow at 7.6%. We are revising it downward to 6.6%. Every percent of growth that falls, it means that that's less opportunity for everyone. And how is that growth falling? Because of the kinds of difficulties that families are facing, just like Dollyji just mentioned, that people are in dire straits, and this is the time the government needs to step up. Instead, it is passing on the burden and crushing the people of India, crushing the common man. सर, भाजपा के आईटी विभाग के चेयरमैन हैं अमित मालवीय। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे हमने जो इंडिया ने जो प्राइस बढ़ाए हैं वो सिर्फ 4 से 5% बढ़ाए हैं। तो इसके अलावा उन्होंने एक डाटा भी दिया, उसमें बताया गया कि इस क्राइसिस में म्यांमार में 89% रेट बढ़े, फ्यूल प्राइसेस बढ़े, मलेशिया में 56%, पाकिस्तान में 55% और यूएई में लगभग 52%। ऐसे उन्होंने बहुत सारा डाटा दिया, तो वो डिफेंड कर रहे थे। इस पे आपका क्या स्टैंड है? Has he looked at the countries which have actually protected their people and kept the prices lower? There are enough countries. She mentioned the case of Nepal. So who do you want to follow? Countries that have burdened their people or countries that have protected their people? That is the question you must ask Mr. Malviya. That BJP doesn't care about the people. They just are worried about making that money which goes into the government's coffers because they cannot manage the economy properly on their own. The basic point is this crisis is created by Modi Sarkar. Prime Minister Modi went to Israel just before this whole crisis. He essentially gave legitimacy to all the attacks that have followed after that. So this is really a series of stupid moves that have compromised India's sovereignty, have hurt the common person, and the leadership is exposed as totally inept and incapable. Inept and incapable of protecting our sovereignty on the global stage and at protecting the people of India from the impact of this war. Can I give it answer? Yes, please. हाँ, हिंदी। देखिए, वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने बढ़ाए, हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने घटाए। तो जनता को राहत देने के लिए जो देश काम कर रहा है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से कंपैरिजन नहीं तय कर सकते ना। जाम्बिया ने रेट घटाए, जर्मनी ने रेट घटाए, नाम्बिया ने रेट घटाए, थाईलैंड ने घटाए, किसी ने अपना वैट शून्य किया और किसी ने नियंत्रित करने के लिए जो उनका रिफाइनरी स्तर पे जो उनकी कीमतें घटाई हैं वो भी, उससे भी टैक्स में राहत दी है। आयरलैंड ने ये काम किया है, यूके ने ये काम किया है, मलेशिया ने ये काम किया है। मलेशिया ने क्या किया है? सरकार ने ईंधन सब्सिडी और टारगेटेड राहत योजनाएं जारी करी हैं ताकि आम जनता का बोझ घटे।
ठीक है, यूके ने क्या किया है, ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और प्राइस कैप लागू किया गया है वहां पे। आयरलैंड में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लीटर राहत पैकेज लागू कर दिए हैं। थाईलैंड ने डीजल की कीमत को, मैंने जैसे पहले कहा, रिफाइनरी स्तर पर कीमतें घटाई और टैक्स में राहत दी है। नाम्बिया ने फ्यूल लेवी कर को आधा कर दिया है। जाम्बिया ने वैट शून्य कर दिया है और एक्साइज ड्यूटी अस्थायी रूप से हटाई है उन्होंने। तो मैं इन देशों के नाम आपको बता रही हूं जिन्होंने ये काम किया है। आप किसी देश को, हिंदुस्तान में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको रिकॉर्ड लो मिल रहे थे, उस दौरान आपने खूब मुनाफा कमाया, तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया और आपने तेल कंपनियों से डिविडेंड लेकर उन्हें निचोड़ दिया। जब आपने खूब मुनाफा कमाया तो उस मुनाफे का जो हिंदुस्तान की जनता को उससे राहत मिलनी थी, फायदा मिलना था, वो आपने हिंदुस्तान की जनता को राहत क्यों नहीं दी? जब क्रूड ऑयल रिकॉर्ड लो था तो हिंदुस्तान की जनता को रिकॉर्ड लो तेल के दाम, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम क्यों नहीं मिले? ये हमारा सवाल है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्राइस स्टीप हाइक होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि वो फ्यूचर में एक रेट तय कर ले और वो बाइंग करता रहे, तो जिससे जो स्टेबिलिटी है रेट की वो बनी रहे। यह ऐसा देखने में आया कि कांग्रेस सरकार ने पहले, या जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने फ्यूचर बाइंग की थी, जिसका मतलब होता है कि रेट चाहे कुछ भी हो, अगर मैंने 70 रुपये देने हैं तो 70 ही देने हैं। तो इस तरीके का क्या मोदी सरकार ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था या नहीं? क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। The Modi Sarkar is guilty of lack of preparation. We also have strategic reserves where we have the capacity to store petroleum and crude oil, etc., for significant amounts. But the actual reality, when we can see that there is a West Asia crisis potentially coming, there was no preparation. We did not increase our crude oil reserves. And the point that you're making, the forward contracts, futures markets, all of those help you hedge the price rise, etc. None of that was done. And so basically you're seeing a very incompetent government. And instead of saying that they're acknowledging their incompetence, they're passing the burden of that incompetence on you and me and the common person, the common citizen of India. This is what we are angry about. Okay? If you cannot manage it, chale jaiye, please vacate the throne. There are others who can do the job better than you. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.